Amritansh, thank you. I will explain all of this in a bit. Thanks, Varnima. Chalo. Ready for the last leg, boys and girls, ladies and gentlemen. Let's rage, 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 and let's end this on a high, right? So we're going. This is very simple. This is very mathematical. This is very logical. The toughest part is done. This is extremely easy in a context. Okay, so let's start. Our last theme, and then some extremely important announcements for you in terms of my further deliverables to all of you. Okay, Joe should be high. Ready? Good. So, we are now going to look at bodies. Now, layer 1, conceptual and factual, and therefore important for the pre. You only need to know basic composition and basic functions of the bodies. Most of the questions are from constitutional bodies, maybe one or two questions here or there, once in a while, maybe from other bodies. Okay? Thank you. Ritika is not getting bored of lectures today, but she gets bored of lectures every other day. है ना? Layer 2, which is analytical in nature and therefore the mains part, I will supplement this with some material, which is an analysis of a 360-degree review of each of the bodies. ठीक है, चलो, बस हाफ एन आवर 45 मिनट्स आराम से ठीक है. All right, let's start. First things first. To understand bodies, we must understand the rule of law, right? When we understand bodies, we understand that bodies have to be classified in two ways. The first is the origin of those bodies, and the second, of course, is the purpose of those bodies. Okay? Origin of the bodies. Number one, constitutional bodies, which we will do in a great depth today, in the relevant amount of depth today. Second, statutory bodies, bodies which are through a law, not the constitution, and constitutional bodies are those which are mentioned in the constitution. Third, executive bodies. These are bodies which are set up through an executive order. You don't require any law for this to be passed. And dependent on the origin, you have certain purposes. First is, of course, you have checks and balances as rule number 4. You have separation of powers as rule number 3. There are some bodies which are regulatory in nature, they regulate a specific sector or a domain. Some bodies are welfare oriented in nature, some bodies are grievance redressal bodies, and so on and so forth, right? To understand all of this, we have to first understand this part. This is basic maths. Let us see.
We have to understand why constitutional bodies are called constitutional bodies. A kindergarten answer to this is constitutional bodies are called constitutional bodies because they are mentioned in the constitution. यही लिखा रहता है, आगे बढ़ता है, ठीक है. अब देखना इसके बियॉन्ड है. So we are going to do a little bit of a derivation. Let's understand this. अभी थोड़ी देर के लिए constitutional bodies भूल जाओ, okay? And let us see what is it that we are referring to, okay? Now, what is a judicial body? A judicial body would be any body which is doing a judicial function, है ना. क्लास 1 के बच्चे को पूछोगे यही जवाब देगा. That a judicial body is any body which is doing a judicial function. And what is a judicial function? It's a combination of a question of law and a question of fact. ये क्या होता है? Did an incident happen or not? That is a question of fact. Is that incident a violation of the law or not? That is a question of law. क्या आपने मुझे डंडा मारा? That is a fact. क्या मुझे डंडा मारना क्राइम है? That is a question of law, right? अब इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं. So half a judicial body will perform either a question of fact or a question of law. And another word for half a judicial body is a quasi-judicial body, which is performing either a question of fact or a question of law. And why is that the case? Because of rule number 4, intra checks and balances or inter checks and balances, है ना. चाहे वो ट्राइब्यूनल हो, कोई कमीशन हो, कोई इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, राइट. क्वाजी जुडिशियल बॉडी ये होते हैं. This is our first derivation. Now let us see, if this is our first derivation, what if I told you that all constitutional bodies are quasi-judicial bodies, but all quasi-judicial bodies are not constitutional bodies. अगर मैं इसको एक वेन डायग्राम बनाऊं और मैं बोलूं this is a constitutional body, this is a quasi-judicial body, then this Venn diagram is correct. Because if you think about it, this is L, this is E, this is J. You have the elected executive, you have the permanent executive. We understand inter checks and balances is all of them keeping a check on each other, right? Lok Sabha, Rajya Sabha, Supreme Court, High Court, etc. The permanent executive ordinarily cannot keep a check on the elected executive because these are elected offices, these are appointed offices. Whenever the permanent executive will try to keep a check on the elected executive will shut down the permanent executive, transfer करा देगा, नौकरी से निकाल देगा, whatever. So you have to give the permanent executive some form of extra power to ensure that they are able to keep a check without any threat. अब वो extra power क्या है कि भाई मेरा tenure secure होना चाहिए, मेरी salary secure होनी चाहिए, मुझे इतनी आसानी से remove नहीं कर सकते, my office expenses मस्ट बी सिक्योर्ड. तभी तो मैं बोलूंगा कि भाई पैसा ठीक से खर्च किया कि नहीं किया, इलेक्शन ठीक से कराए कि नहीं कराए. फॉर मी टू डू ऑल ऑफ दैट आई नीड दीज काइंड ऑफ प्रोटेक्शंस, एंड बिकॉज दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनली ब्रांच्ड institutions, I need these protections in the constitution, which is why these protections have to be given in the constitution, and the bodies that get these kind of protections, ladies and gentlemen, are called constitutional bodies. So the answer to the question why are constitutional bodies called constitutional bodies is because constitutional bodies are performing checks and balance functions right? They are performing
checks and balance functions. And think about it. All constitutional bodies are actually like quasi-judicial bodies. Disputes with respect to election management, election commission, CAG डिसाइड कर ऑडिट कर रहे हैं कि पैसा कहाँ खर्च किया, ठीक किया कि नहीं खर्च किया. फाइनेंस कमीशन बताता है कि भाई टैक्स का पैसा कैसा कहाँ जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए. यूपीएससी डिसाइड करता है रिक्रूटमेंट कैसे होगी, क्या नहीं होगी, क्यों होगी. ये सब क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शंस है. यूपीएससी आल्सो हैज डिसिप्लिनरी रिकमेंडेशन पावर्स. फिर so every constitutional body can be a quasi judicial body, but every quasi judicial body is not a constitutional body, right? वो now the judiciary cannot get into this because of rule number 3, separation of powers, because ये internal process है. So when they will keep a check on the actions of the executive, then they will provide their reports to the parliament, sometimes through parliamentary committees. वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के सीक्रेट एजेंट हो सकते हैं, in the sense that they're performing a work on similar lines as the judiciary. जुडिशरी ना होते हुए भी जुडिशरी जैसा चेक एंड बैलेंस काम कर रहे हैं, because the judiciary cannot get into the action, the wisdom behind the actions. The judiciary cannot get into the reasons behind a decision. So they are actually frontline and beyond frontline warriors for upholding checks and balances. Now, if that is the case, those constitutional bodies which are actually doing that level of checks and balances, they're at a very, very high place. So if India's highest judicial body is the Supreme Court, then India's highest quasi-judicial bodies are constitutional bodies. Compare both of these equations. कम से कम quasi-judicial body तो common है दोनों में, and Supreme Court and constitutional bodies, some select ones. सुप्रीम कोर्ट के जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं है. That is why a few constitutional bodies are removed in the same manner as that of a Supreme Court judge. A few constitutional bodies are removed in the same manner as that of a Supreme Court judge. These answer your fundamental questions. Why are constitutional bodies constitutional? Because they are performing a check on the limitations of power, which is a constitutional principle, and have been guaranteed these kind of protections. The speaker is not a constitutional body. The president is not a constitutional body. These guys are. समझ में आया? तभी इनको हम constitutional bodies कहते हैं. They've been given these kind of protections. ठीक है? अब comes the main part. There is a defined structure for pre and mains of constitutional of bodies, and these bodies are for any body, कोई भी body. A constitutional body is a body under the constitution, the CAG, ECI. A statutory body is under any other law, NHRC. Now, constitutional bodies or statutory bodies can also be regulatory bodies. जैसे SEBI. SEBI is a statutory body and a regulatory body, because that's by function. Securities Exchange Board of India. You cannot be a regulatory body without having a law backing you up. It will be a violation of rule of law. You cannot be a regulatory body without a law backing you up. If you did not have the SEBI Act, you cannot have SEBI making a decision on whether an IPO should be issued or not. Rule of law is our basic principle. Agar if you have any body has been given those powers, then those powers have to be backed by law. ठीक है? Clear? Are you okay with this? ये समझ में आ रहा है? Now,
द स्ट्रक्चर इज अ कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर. बहुत ध्यान से देखना. द इंट्रोडक्शन फॉर द बॉडी कैन कंप्राइज ऑफ 3 things. First, the legal provisions. Second, any current affairs context why the body has been in the news, and any related data to the sector of the body. कि कुछ इलेक्शन डेटा ECI के लिए, कुछ ऑडिटिंग डेटा CAG के लिए, ह्यूमन राइट्स डेटा NHRC के लिए, उस तरह से. ठीक है, दिस इज योर इंट्रोडक्शन. देन व्हेन यू लुक एट योर बॉडी, बहुत ध्यान से देखना, योर बॉडी इज गोइंग टू हैव 1, 2, 3 and 4 headings. ठीक है, 4 बेसिक हेडिंग्स. फर्स्ट हेडिंग मैंडेट. सेकेंड हेडिंग composition. Third heading functions. Fourth heading special powers. In सब में their respective first sub point is what is the mandate, what is the composition, what are the functions, what are the special powers. ये पहला होगा. The second, so ये 1.1, ये 0.1, ये 0.2, 0.3, तो इधर 1.1, इधर 2.1, उधर 3.1. Then what is the problem? What is the problem? Then what are your solutions? So mandate में 1.1, what is the mandate? 1.2, what is the problem with the mandate? 1.3, what is the solution to the mandate? And your conclusion, the importance of the body in the sector or the future of the sector, कि ये सेक्टर या ये इम्पॉर्टेंट क्यों है देश के लिए. ठीक है. एंड द फन पार्ट, द मैजिकल पार्ट इज दिस, आप कुछ भी उठा लो, रिस्पेक्टिव मैंडेट, कॉम्पोजिशन, फंक्शन, सबके प्रॉब्लम्स एक जैसे ही होते हैं. प्रॉब्लम क्या होता है? या तो मैंडेट वेग होगा, या अनडिफाइंड होगा, या फिर आर्बिट्ररी होगा, या एम्बिगुअस होगा. अब ऐसा होगा, सो वी नीड क्लैरिटी इन द लॉ, वी नीड ए सेपरेशन ऑफ फंक्शन as your solution. Composition की क्या प्रॉब्लम्स होती है? या तो बॉडी अपॉइंटेड होती है, या तो बॉडी इलेक्टेड होती है. अपॉइंटेड होती है तो क्या इशू होता है? कोई ना कोई क्वालिफिकेशन बायस होता है कि वो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं है, एक सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है. अगर इलेक्टेड होती है तो रिप्रेजेंटेशन बायस होता है, दैट इज स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल हैव अ लार्जर से. उसमें रीअपॉइंटमेंट का इशू होगा, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का इशू होगा. वही तो इशू है. और इनके सॉल्यूशंस भी सेम ही होते हैं कि भाई आप रीअपॉइंटमेंट रोक दो, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाओ, पार्लियामेंट्री कमिटीज को बोलो कि असिस्ट करें in appointments so that there is a larger democratic role to play. Basic, सबका आंसर सबका सेम ही होता है बॉस. दुनिया में कोई बॉडी उठा लो, कोई भी बॉडी, प्रॉब्लम्स आर ओ क्यूब. या तो ओवरबर्डन्ड है, या ओवरलैप्ड है, या आउटडेटेड है. ओवरबर्डन्ड, ओवरलैप्ड, आउटडेटेड. अब ओवरबर्डन्ड है तो भाई फंक्शन कम करो, नई बॉडी बनाओ. ओवरलैप्ड है तो अगेन क्लैरिटी ऑफ वर्क, सेपरेशन ऑफ पावर्स. आउटडेटेड है तो लॉज अपडेट कर दो भाई. एंड स्पेशल पावर्स आर यूजुअली डिस्क्रेशनरी इन नेचर. किसी को पूछ नहीं रहे, अपना मन लगा रहे हैं. In that case, there should be better
अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स, रिपोर्ट टेबल हो रही है, कोई कमिटी रिव्यू कर रही है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये आपका प्रॉब्लम, ये आपका सोल्यूशन, ये आपका प्रॉब्लम, ये आपका सोल्यूशन, ये आपका प्रॉब्लम, ये आपका सोल्यूशन, कुछ भी उठा लो। एंड दिस इज व्हाट योर मीन्स योर कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर शुड बी। क्या है इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन है इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर द मेंस। समझ में आया? सब बॉडी पे एक एक दो दो पेज होना चाहिए बस। न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया, अच्छा मैंडेट रिलेटेड आर्ग्यूमेंट है, यहाँ ऐड कर दिया। कॉम्पोजिशन रिलेटेड आर्ग्यूमेंट है, फंक्शन रिलेटेड आर्ग्यूमेंट है, स्पेशल पावर रिलेटेड आर्ग्यूमेंट है, ऐड करके खत्म कर दिया, बात खत्म। इट्स दैट सिंपल, इट्स दैट इजी, इट्स दैट मैथमेटिकल। अब कुछ भी उठा लो यही है। सीएजी ऑडिट करता है, ऑडिट का मतलब क्या पता है, किसी लॉ में लिखा नहीं है। सीएजी में आईएएस को प्रेफरेंस मिलती है, आईएएस का ऑडिट अकाउंट्स का मोरल डाउन होता है, और कोई फंक्शनल स्पेशलाइजेशन नहीं है। सीएजी सारे ऑल आर्टिकल 12 में जितना है उसको ऑडिट करता है। सीएजी का काम स्टेट अकाउंटिंग और अदर अकाउंटिंग सर्विसेज में ओवरलैप करता है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में लॉ अपडेट नहीं कर रहे, वो ऑडिट नहीं कर पाता है। स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ द सीएजी इज डिस्क्रेशनरी, तो उससे क्या होता है, सीएजी कैन समटाइम्स बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल एस्पियोनाज। बस खत्म। इतना आसान है, इट इज जेन्युइनली दैट इजी। आई विल टीच यू दिस ऑफ ऑल द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन 2 minutes। इतना आसान होता है, ठीक है? क्लियर ऑन दिस? बस। और ये सिर्फ मतलब सिक्योरिटी काउंसिल लिख दो, अंडर द यूएन चार्टर has been playing a negligible role in the Ukrainian conflict, has been responsible for a lot of unrest in the Middle East. Mandate to promote and preserve peace and security in the world. What is peace and security? Nobody knows. Solution, clear mandate should be given. Problems, elected hai, but there is a veto, and therefore there will always be a veto politics at Security Council. Overburdened क्यों है? सब कुछ करते हैं, पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड सब कुछ करते हैं। ओवरलैपिंग, योर ओवरलैपिंग विद अदर बॉडीज सच एज डिसआर्मामेंट काउंसिल, योर डीन्यूक्लियराइजेशन काउंसिल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, सबके साथ सिमिलर काम है। जनरल असेंबली में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आउटडेटेड टुडे, इकोनॉमिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, सिक्योरिटी काउंसिल इज नॉट देयर, एंड यू हैव द एब्सोल्यूट पावर टू इम्पोज सैंक्शंस। एंड आप किसको सैंक्शन देते हो, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। अब मैं सिक्योरिटी काउंसिल को काट के WTO लिखूं, RBI लिखूं, CAG लिखूं, इलेक्शन कमीशन लिखूं, UPSC लिखूं, कुछ भी लिखूं, पॉइंट्स तो ब्रॉडली यही है। पॉइंट्स आर ब्रॉडली जस्ट दिस। मैं आपको आपके कंसोलिडेटेड नोट्स पे 2-2 पेज बना के दूंगा। दैट इज इट, दैट इज इट। यस अश्विनी, ऐसे मीन्स के पहले एक एक बॉडी का 2-2 पेज पढ़ के जाना है बस, और कुछ नहीं। स्टैट्यूटरी बॉडी है तो बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बना दो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो बोलेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी से रिव्यू करा दो, बात खत्म। इंटरचेंजेबल आर्ग्यूमेंट्स है सबके, बस कुछ नया नहीं है इसमें। देयर इज नथिंग न्यू एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बस थोड़ा सा वॉट कर लेते हैं, देन आई विल गिव यू योर ब्रॉड डिलिवरेबल्स। ठीक है, तो बॉस बॉडी एग्जाम में आता ही इतना है, इससे ज्यादा लिखोगे क्या? मैंडेट, कॉम्पोजिशन, उसमें अपॉइंटमेंट और रिमूवल, फंक्शंस,
special powers. अब देखो, let's say we'll pick these bodies up in a certain section. तो पहले फाइनेंशियल बॉडीज उठा लेते हैं, ठीक है. सपोज CAG मैंडेट क्या है? कंट्रीज एपेक्स ऑडिटर. कॉम्पोजिशन क्या है? CAG एक ही होता है. नाउ अपॉइंटमेंट इज बाय द प्रेसिडेंट. Of course, by president it means on advice of the council of ministers. 6 साल या 65 years, whichever is earlier, ये आपका tenure होता है. Why 6 years? Because one more year than the usual mandate of the lower house, ताकि it is not a politically sensitive appointment. बस. Removal, it's a massive check and balance function. The CAG is telling the government पैसा खर्च कैसे किया. CAG stands for Comptroller Auditor General. इंडिया में C साइलेंट है, यूके में C साइलेंट नहीं है. कंट्रोलर मतलब, कंट्रोलर इज द लैटिन वर्ड फॉर कंट्रोलर, कि खर्च करने के पहले परमिशन. इंडिया में खर्च करने के पहले परमिशन नहीं लेते, बिकॉज ऑफ रूल नंबर 1, इट इज एन अपॉइंटेड बॉडी नॉट एन इलेक्टेड बॉडी. खर्च करने के बाद, आफ्टर द मनी इज बीन स्पेंट, have you spent it the right way or not? That is the job of the CAG, which means it's performing a check and balance function. Has to be removed in the same manner as that a Supreme Court judge, special majority 2, like a Supreme Court judge. Function क्या है? Regulatory audit, an audit by a designated law, sometimes a policy audit. ये सब डिटेल में दूंगा मैं. A policy audit, which is nothing but checking whether the government has been formulating the right policies or not. Proprietary audit, कि भाई MG नरेगा में तुमने कनाल क्यों बनाया, तुमको तो कुआं बनाना था. So proprietary audit. Special power क्या है? Special power ये है कि the depth of an audit, LIC का CP में ऑफिस देखना है या गांव-गांव में जाके ऑफिस देखना है, that it is entirely up to the CAG. So the scope of audit is left to CAG. अब भाई एक्सपेंडिचर है, अब एक्सपेंडिचर है तो इसका मतलब रिव्यू कर रहे हैं. एंड वी हैव अ पार्लियामेंट्री कमिटी कॉल्ड द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, विच इज सपोज टू रिव्यू द एक्सपेंडिचर ऑफ द मिनिस्ट्री. तो भाई अपनी रिपोर्ट दे दो जरा PSC, एंड द प्रेसिडेंट कैन कॉज फॉर योर रिपोर्ट टू बी लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट. बस. द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हु डायरेक्टली सबमिट्स रिपोर्ट टू ए पार्लियामेंट्री कमिटी. प्री में इसके ऊपर एक लाइन नहीं आएगी. इससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं चाहिए. दैट्स योर फर्स्ट फाइनेंशियल रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सेकेंड, वी वर डिस्कसिंग दिस अ व्हाइल अगो, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया. मैंडेट, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रांट्स इन एड एंड लोकल फाइनेंसेस. प्राइमरी काम तो यही है बस. Composition, 1 chairperson plus 4 members. So member 1, member 2, member 3, member 4. The chairperson, as we would know, is somebody who is a public affairs expert. बस इतना ही लिखते हैं. A public affairs expert. Member 1, because these are also judicial decisions, so a member 1 should be somebody who is eligible to be a high court judge. Member 2, an economics expert. Member 3, a generalist, usually ISC होता है. And member 4, a government finance expert, जिसने गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम किया हो. बस
इसके ऊपर प्री में पूछेंगे नहीं, करोगे क्या ज़्यादा याद करके, ठीक है। अपॉइंटमेंट, नाउ यू आर सपोज टू रेकमेंड टू द गवर्नमेंट, so it's not that you are questioning the government, you are telling the government what they should do from the next time onwards, so your work should be synced with the government as much as possible. That is why your tenure here is for 5 years. 5 साल की होती है कमीशन, एंड बिकॉज यू आर नॉट परफॉर्मिंग अ चेक एंड बैलेंस फंक्शन, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा था, प्रेसिडेंट रिमूव कर देगा फॉर ब्रॉड कंडीशंस, मेंटल इनकैपेसिटी और लेट अस से फाइनेंशियल इनकैपेसिटी और एनी मॉरल इशू. दिस ऑल्सो साउंड्स लाइक द क्राइटेरिया फॉर रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, अगर ढंग से देखो तो. फंक्शंस क्या है जो आज हमने ऑलरेडी 15 फाइनेंस कमीशन के डिस्कस कर लिए. एंड स्पेशल क्या है कि बॉस आपने कुछ गलत काम थोड़ी ना किया, आप रिव्यू थोड़ी ना कर रहे थे गवर्नमेंट को, सो यू आर री एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट. बट हियर you are reviewing the work, so you are not re-eligible for appointment within the state. काम से सीख जाओगे आर दे एलिजिबल और नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट. ठीक है. एंड देन योर लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज बीन मोस्ट रिसेंटली क्रिएटेड, जीएसटी काउंसिल. इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, which is nothing but regulating और all GST policy decisions, क्या रेट होना चाहिए, क्या कॉम्पनसेशन जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, बस. कॉम्पोजिशन क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द सेंटर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर्स. इसमें अपॉइंटमेंट और रिमूवल का चक्कर ही नहीं है, ये तो इलेक्टेड अपॉइंटमेंट है. फंक्शंस क्या है, जीएसटी रेट्स, कॉम्पनसेशन, रेगुलेटरी क्लॉजेज. और स्पेशल पावर्स क्या है, यू रिक्वायर ए 2/3 to 3/4 majority फॉर डिसीजन मेकिंग, बस. Yes. इतना ओपन एंडेड है जीएसटी काउंसिल, इसमें आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है. ठीक है, क्लियर. Now, same body, mandate, composition, functions, special powers. composition में tenure, number, appointment, removal, बस.
इसके नोट्स निशांत ऑलरेडी मेन ड्राइव में है, बट आई वांट टू अपलोड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो. अब बाकी उठा लो. बेसिक्स, जस्ट द बेसिक्स. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया mandate to conduct all center and state related elections. local नहीं, center and states. tenure 6 years, 65 years, because political opportunism नहीं होना चाहिए. number 1 chief election commissioner and 2 election commissioners, they are equal except a tie. बस जैसे स्पीकर डेप्टी स्पीकर में होता है. अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. रिमूवल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर removed in the same manner as that of a supreme court judge. check and balance function है, special majority 2. and the election commissioner same but after CEC approval. जब तक चीफ इलेक्शन कमीशनर अप्रूव नहीं करेगा तब तक आप उसको नहीं निकाल सकते इलेक्शन कमिश्नर्स को. बस फंक्शंस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा के सारे इलेक्शंस से रिलेटेड इश्यूज प्लस डिस्प्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, पार्टी शेड्यूल, सब कुछ, सिंबल्स, सब कुछ. and because you're directly not reviewing government work, so you have been given, और ये बहुत ही shady power है, you very very shady power, you can be reappointed. आप सीधा सीधा मेंस में लिखोगे they should not be reappointed. बस. थैंक यू शोभित. बस इतना, क्या इससे ज़्यादा क्या एग्जाम में आता, कुछ नहीं आता. नेक्स्ट अपने चुनमुन्नू यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, रिक्रूट ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट सर्विसेज. बस स्टेट सर्विस कमीशंस. बस टेन्योर 6 years, 65 years. सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऐसे ही चलता था. 6 years, हाई कोर्ट रिटायरमेंट एज 62, सुप्रीम कोर्ट 65, इधर भी 62, 65. तभी तो स्टेट से ऊपर आओगे. यस. यूपीएससी में मैक्सिमम 11 हो सकते हैं, करंटली 10 है. ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है. अब कुछ तो सेंटर स्टेट का ख्याल रख लो. अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, हियर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, हियर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, here also removed by the president. अब इन्हीं से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी निकलती है, तो भाई इनको तो कुछ और देना पड़ेगा. सो प्रेसिडेंट पोस्ट ए बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी, हियर ऑल्सो प्रेसिडेंट पोस्ट ए बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी. सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी का रिपोर्ट भेजेगा, प्रेसिडेंट को उस रिपोर्ट के बेसिस पे रिमूव करना है. इधर देखो रूल नंबर 2 एंड हॉलो कैंडी. अपॉइंट तो गवर्नर ने किया, रिमूव प्रेसिडेंट करेगा. नहीं तो फिर करते रहो करप्शन स्टेट गवर्नमेंट में बैठ के. यस, अंडरस्टूड, क्लियर.
So IAS, IPS, forest, foreign, defense, medical, geography, geologist, engineering services, economic services, statistical services, सब कुछ सब कुछ. इधर स्टेट सर्विसेज. जितने भी मेंबर्स हैं एटलीस्ट हाफ शुड बी पीपल हु हैव पब्लिक अफेयर्स एक्सपीरियंस. वो वाला अफेयर नहीं, ये पब्लिक लाइफ वाला एक्सपीरियंस, मतलब सिविल सर्विसेज वाला पब्लिक ऑफिस. और इसमें से आधे लोगों के पास कम से कम 10 साल का पब्लिक सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए. एग्जैक्टली द सेम. अब you are recruiting services to the government, you can't ask for reappointment, and the only place state public services can get reappointed to is UPSC या UPSC to state public. बस और कहीं reappointment नहीं हो सकता. तभी तो 62 years, 65 years. (62 years, 65 years. इसमें क्या मुश्किल है? कोई नहीं पूछेगा मीन्स में यूपीएससी को बेहतर कैसे करें. पहले लिख तो लो. मेंस में सीएजी, एनएचआरसी, एनसीडब्ल्यू ये रोटेशन में आता है. ईसीआई समटाइम्स. लास्ट सेट एंसिलरी बॉडीज. बॉडी, मैंडेट, composition, functions, special powers. Attorney General of India, Advocate General of India, ये कंपेरेटिव हैं. एंड ये जो एंसिलरी है NCSC, NCST, NCO, एक सेकेंड, NCBC, नेशनल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक्स, सबका सेम है बाबा, सबका सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है किसी में. ठीक है. दीज आर कंपेरेटिव. अटॉर्नी जनरल इज सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉयर, यूनियन गवर्नमेंट का टॉप लॉयर. बेसिक वो कहते हैं ना यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तो केरला में एडवोकेट जनरल आए थे. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अटॉर्नी जनरल, स्टेट ऑफ यूपी में एडवोकेट जनरल. अटॉर्नी इज अ फैंसी वर्ड तो सेंटर के लिए, एडवोकेट इज अ शेडी वर्ड तो स्टेट के लिए. तो ये स्टेट गवर्नमेंट का टॉप लॉयर. This, by the way, is your constitutional lateral entry. ये कॉन्स्टिट्यूशन की lateral entry है. अभी हम जो चिल्लाते रहते हैं lateral entry, कॉन्स्टिट्यूशन में कब से दिया है lateral entry? अब सरकारी वकील है ना, so here you are supposed to represent Union of India. Here you are supposed to represent your own state. तो जिस स्टेट के तुमको अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल बनाया है. ओके मनीष. अब एक ही तो है, यहाँ भी एक ही है. यू कैन हैव सब ऑफिसेस बट एक ही होता है. सरकारी वकील है, इससे क्या पूछना है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा. और जब तक अच्छा काम करोगे तब तक रहोगे. प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा, सॉरी इधर गवर्नर. बस. फंक्शन
Same, advise and represent central government, advise and represent state government. Now if you are representing the government is a subset of the parliament, you have the right to be present in the parliament, speak in the parliament, but appointed ho na, you can't vote in the parliament. Similarly, you can't vote here in the state legislatures. Can you have your own private practice? Yes, but this private practice cannot be in conflict with the central government. ये नहीं कर सकते कि अटॉर्नी जनरल जो है सुबह आके इज डिफेंडिंग गवर्नमेंट ऑन अ पीआईएल चैलेंजिंग सेडिशन और शाम को जाके यूएपीए पे पीआईएल अलग से फाइल कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट. फिर गवर्नमेंट बोलेगी इधर आ तेरे को मैं किस लिए रखा बाबा, मेरे को तू डिफेंड करेगा, मेरा हेल्प करेगा, पार्लियामेंट में आएगा, तेरे को लोग पूछेंगे कि लीगैलिटी क्या है, व्हाट इज़ द कोर्ट ट्राइंग टू से, और शाम को मेरे खिलाफ ही पीआईएल फाइल करेगा. बाबा ऐसा नहीं चलेगा. बस दैट इज इट सर. जब तक काम करोगे करोगे, नहीं करोगे नहीं करोगे. न्यू गवर्नमेंट कम्स, दे यूजुअली हैव देयर ओन अटॉर्नी जनरल्स एंड एडवोकेट जनरल्स. सरकारी तो है. अब इसमें क्या एनालिसिस करोगे? ही इज अटॉर्नी जनरल, ए ट्रू जूरिस्ट. अब अटॉर्नी जनरल है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करोगे, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में होते हैं. यू शुड बी एलिजिबल टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज. यू आर द लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट, यू शुड बी एलिजिबल टू बिकम द जज ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट विच इज हाई कोर्ट. बस सेम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, 10-10 साल की प्रैक्टिस बस. देन कम्स योर NCSC, NCBC, your NCST, NCBC and linguistics और ये सब, right? National Commission on Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Backward Classes and Linguistics. ये welfare body है ना, to advise on welfare of scheduled caste, scheduled tribe, backward classes and linguistic minorities or languages. अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा. इनका क्या है इसमें प्रॉब्लम? वे तो बोलेंगे ना कि ये लॉ ऐसा बनाओ, ये पॉलिसी ऐसा बनाओ, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए. इसका कोई भी रिमूवल इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर. जिस भी किताब में लिखा है वो गलत लिखा है और अपने मन से लिखा है. देयर इज नो डिफाइंड रिमूवल प्रोसेस फॉर NCSC, NCST, BC एंड लिंग्विस्टिक्स. ठीक है. एंड दीज वर द वंस विच वर एक्चुअली एडेड. दीज वर like the GST council was added later to the constitution. ठीक है, आया समझ में? ऑल राइट, डन. अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना. माई डिलीवरेबल्स टू यू. माई डिलीवरेबल्स टू यू. ये अगर मैं नहीं करूंगा तो आई हैव फेल्ड यू. बहुत ध्यान से सुनना. सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी क्या क्या आपको और मिलेगा. नंबर 1, I will give you a full syllabus map कि prelims topic 1, means topic 1, 1.1 सब topic, 1.2 सब topic, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, कौन से नोट से पढ़नी है, कितना पढ़ना है. पहला ये. दूसरा, 2022 की अपडेटेड रीडिंग लिस्ट फॉर बोथ लक्ष्मीकांत एंड योर नेक्स्ट IAS का मटीरियल. Third, lot of you will be finding it very difficult to take a printout of the PPTs.
I'll convert the PPTs into a Word document and then make a PDF out of it. You can take your printouts. They'll be smaller in size. ठीक है. फोर्थ, प्रीलिम्स के पहले आप लोगों के लिए एक 6 to 7 लेक्चर का क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटी अपने यूट्यूब पे आप आराम से देख सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड मैग्ना कार्टा. मैं ये हर साल करता हूँ, आप लोग के लिए भी रहेगा. ठीक है, विल बी ऑन यूट्यूब. मीन्स के पहले आपको जितना भी डेटा और आर्ग्यूमेंट अपडेट है, मैं एक अलग सी फाइल बना दूंगा कि इस पेज में ये ऐड करना है, ये एक्स्ट्रा पढ़ना है. और मीन्स का भी क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए यूट्यूब पर रहेगा. आपको मेरे लिए मुझे और पैसे मत देना, आपने नेक्स्ट में दे दिया और मत देना, बस. ठीक है, ये क्लियर है. पॉलिटी, गवर्नेंस, योर फुल कोर्स ऑन यूट्यूब विद इन द नेक्स्ट 3 weeks. पूरा का पूरा with notes, and I'm going to now start weekly case studies solving ये मैं ethics में आता हूँ. proper full notes and proper PDF PPT वगैरह सब कुछ governance के लिए मेरी तरफ से, सब कुछ पैसा वैसा नहीं देना इसमें. थर्ड, ethics, फुल कोर्स ऑन यूट्यूब. बहुत लोगों ने बोला सर एथिक्स नहीं समझ में आ रही, हेल्प कर दीजिए. करते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड वीकली केस स्टडीज, वीकली केस स्टडीज यूट्यूब पे विद इन द नेक्स्ट 2 weeks. सिमिलरली लोगों को सोशल इश्यूज में प्रॉब्लम था, IR में प्रॉब्लम था, इंटरनल सिक्योरिटी में इशू था. ये सब मैं मेंस के पहले आप सब के लिए यूट्यूब पे डाल दूंगा. प्रॉपर कोर्सेज आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अंडरस्टूड. प्रीलिम्स के लिए यू गाइज कैन यूज माई मंथली कंपाइलेशन. डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, वेबसाइट से. मैं वेबसाइट के नोट्स भी रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं. मंथली टेस्ट बनाता हूँ मैं, उसको आप लाइव अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप PDF डाउनलोड करके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. डेली क्वेश्चंस एंड डेली CA मैंने वापस शुरू कर दिया है. न्यूज़पेपर शॉर्टलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा प्रीलिम्स का एक फाइनल लैब फोल्डर जिसमें इंपॉर्टेंट स्कीम्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंडेक्सेस, geographical hotspots, environment, science and tech development, defense developments, eco survey summary, budget summary, सब कुछ मैं 2 पेज में प्री के लिए बना के दे दूंगा. पढ़ लेना, क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें से. ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ये आपके लिए है. ठीक है, राइट. ये सब कुछ आपको प्रिंट चाहिए तो मैं इंस्टीट्यूट में एक प्रिंट की कॉपी दे दूंगा पॉलिटी की. बाकी आप सबको ड्राइव पे, यूट्यूब वगैरह पे हर जगह मिल जाएगा. ठीक है, क्लियर ऑन दिस. इसके अलावा इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू नीड दैट आई कैन डू फॉर यू, इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन बी ऑफ एनी असिस्टेंस फॉर यू, प्लीज लेट मी नो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट. ठीक है. नाउ सबसे पहले लॉट ऑफ पीपल ऑलवेज आस्क मी कि सर आप इतना सिंपल क्यों पढ़ाते हैं, या आप क्यों इतना कंसाइज रखते हैं. क्योंकि what is more important than me showing off my knowledge is the value of your time, right? Okay, is the value of your time. I'm sorry if I'm not entertaining in class. I'm really sorry. मैं जोक वोक थोड़ा कम मारता हूँ, थोड़ा मैं ऐसे थिएट्रिकल कम हूँ, क्योंकि पढ़ाने में इतना मज़ा है तो ये बहुत कुछ है. ठीक है, that's all that matters, right? And more than anything else, if मेरे से कुछ गलती हो गई हो, if I have not lived up to your expectations, तो मुझे माफ़ कर देना. I will certainly get better. If you tell me, I will definitely get better. I have always tried to make sure that more than depth, relevance and clarity was most important. आप
आप यहाँ फॉर्मल एजुकेशन नहीं, आप एग्ज़ाम क्लियर करने आए हो और मेरा काम है आपको एग्ज़ाम क्लियर कराना. एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दिस. एज फार एज पॉलिटी इज़ कंसर्न्ड, आप हैंड रिटन नोट्स पढ़ेंगे, आप लक्ष्मीकांत या नेक्स्ट आईएएस का इसेंशियल रीडिंग लिस्ट पढ़ेंगे और आप प्री में एग्ज़ाम दे के आएंगे. आपको और कुछ नहीं करना है. रिविजन चाहिए तो यूट्यूब पे वो कोर्स देख लेना, मैं थोड़े दिन में डाल दूँगा. ठीक है, ऑल राइट, ओके. लोक अदालत, आरटीआई वगैरह जो आपकी गवर्नेंस में ओवरलैप करता है, ये सब मैं पढ़ा दूंगा. जस्ट प्लीज़ रिलैक्स. ठीक है, ओके, डोंट वरी अबाउट इट. हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग वगैरह मैं सब सेटअप कर दूंगा. अभी कल परसों से आई विल सेटअप अपॉइंटमेंट स्लॉट्स फ्रॉम 10 o'clock to 8 o'clock एट नाइट. आप में से जो फिज़िकली मिलना चाहते हैं इंस्टीट्यूट में, आप आके मिल सकते हैं. फॉर दोज ऑफ यू हु वुड वांट one-on-one सेशन, आप बुक कर सकते हैं. आई विल मेक श्योर दैट आई गिव यू 15-20 मिनट्स पर स्टूडेंट, ताकि यू ऑल्सो डोंट वेस्ट योर टाइम वेटिंग फॉर मी टू कम. More than anything else, if you just give me 2 minutes to just sort of speak to you about a few things, this is very important. Uh, the harder you work, the luckier you get. पहली बात तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना. Second, this exam is a very difficult exam. I understand that, and all of you have sacrificed so much for this exam. You guys could have been doing so many other things in so many materialistically or otherwise different ways, but you've decided to do this, right? It is an incredibly positive gesture. It takes a lot of courage to pursue civil services, and I am extremely proud of all of you for deciding to do this. एग्ज़ाम निकले या नहीं निकले, this preparation will change the way you look at life, you change the way you look at world, you change the way you look at things around you, which is the most important part. More than anything else, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, you will get through. Always remember that it is the job that you should be good at, not what the job gives you. After a while, all the power, the social esteem, the prestige, the money, whatever it is that are ancillary, they become meaningless after a point. You have to always keep learning, always working hard. Remember that there is a part of this country that needs you to help them transform their lives, and that is the purpose of your life, and that's the purpose of the life that you have chosen for your for yourselves. And that is okay, that is great, that is something you should be very proud of. But more than anything else, you guys are incredible for deciding to do this. ज़िंदगी में कितना भी सक्सेस मिले, कितना भी नई सक्सेस मिले, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना. फर्स्ट, डोंट जज पीपल. बी क्यूरियस बट डोंट बी जजमेंटल. कुछ भी कर लो, always be there for your parents when they need you. They are the highest form of unconditional love in the world. Third, no matter what happens, I am always there. I know I've been very busy for the last couple of days to get things in order, but I'm always there for everything that you need, otherwise also. But I am very proud of you. I thank you for allowing me to be worthy enough to teach you. It is an honor, it is a pleasure, it is a privilege. मुझे कुछ नहीं आता पढ़ाने के अलावा, to be very honest. मुझे इसी से बहुत खुशी मिलती है. I really hope and pray that the joy that I get in teaching is the same joy that you will get in your lives with the work that you do. I will always be very thankful to you for giving for accepting me as your teacher. नाम, ब्रांड वैंड, ये सब फालतू बातें होती है, बट genuinely thank you for it. And
मोर देन एनीथिंग एल्स अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, परेशान मत रहिए, है ना। एंड कुछ गलती हो गई है तो माफ़ ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।